قرآن ہے نا کھلو جاؤ نا ہوں کھلو جاؤ نا گل جے اپنی میری کر لیندے تو سن لو نا کہانیاں نہ ودائی جاؤ اگے کہانیاں نہ لمبیاں کری جاؤ ایک گل تے کھلوو نا کہانیاں لمبیاں نہ کری جاؤ تسی ایک گل نوں لے کے ٹرے تے 150 پاسے پھرا لیا جے ایک گل لے کے ٹرے انہوں 150 پاسے پھرایا جے ہن ایتھے ہی کھلو جو نبی پاک دا اخلاق ہے نا قرآن کتے لکھیا قرآن چ کہ رسول اللہ شراب پیندے سن میں تواڈے سامنے تواڈی جماعت دے بندیاں دیاں چلانا آڈیو جڑے کہندے نے رسول اللہ شراب پیندے سن بھیجو گے لعنت میں جڑا حضور نبی پاک تے بہتان لاندے او دے تے 1 کروڑ بلکہ بے شمار اچھا کہو جن نے کیا سیفی نے کیا سلیم میر نے کیا یار گل تے سن علی اکبر نے کیا او میں میری گل سن مبشر رضا نے کیا بھیجو لعنت نہ لے کے بھیجو جن ساتھ بیٹھتے ہیں زاہد بھائی وہ ان کے ساتھ جن بیٹھتے ہیں نہیں نہ لے کے لعنت بھیجنی جے میری گل سنو نا نام لے کے لعنت بھیجنی جے کدے تے نہ لے کے اعظم سیفی سلیم میر مبشر رضا تے اپنا علی اکبر چلو 4 بندے نے جنہاں دا جڑا ایک تہاڈی خاتون بھی ہے جماعت دی جہدی آڈیو تانوں بار بار سنائی گئی ہے بھیجو ذرا لعنت نہ لے کے نہیں میں تواڈے کہن تے کیوں لانتا بھیجا میرے سامنے جدوں آ کے او گل کر تانوں آڈیو نہیں سنائیاں اسی دوبارہ سنا دیے میری گل سنو نا گل سنو میں یہی تے میں گل کرنا چاہندا جیڑی تسی ادھ وچکار مینوں کرن نہیں دتی میں کہنا کہ جہاں کتاباں چ حوالے ہیگے نے میں انہاں حوالیاں دی صحت تے شک کرنا کہ درست نہیں ہے یہ انہاں کتاباں چ نکلنے چاہیے نے میرا تو مطالبہ یہ ہے میرے لوگ زید کے بکر کے جو مرضی چلو گل ہوگی پھر اسامہ بھائی آپ کریں بات چھٹو نا پھر اس کام سے پیار نہ کرو دیر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے آپ لگے جا رہے آگے اسٹیریل صاحب آپ نے ہماری ایک لائف کے پوسٹر پہ بات کی ہے کہ سٹاپ بلاسفمی آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیو سم مرسی آن innocent احمدیز ان پاکستان اب میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پیچھے میں مجھے موقع تو دینا کرے بات سوری میں ایک احمدی ایک لائیو لگتی ہے میں 3 لائیووں کے نام یہاں لوں گا ٹھیک ہے ایک وہ جو فرقان آپ کہتے ہیں وہ لے لی ایک میر سلیم کی لے لی فار دی سیک آف دی آرگومنٹ آج کے لیے ٹھیک ہے اب ان دونوں مسلمان گزر رہے پوری دنیا سے مسلمان ہیں لگے ہوئے توہین کرنے شاتمیت بیک لیش کہاں جائے گا پاکستان جائے گا سامنے سگنلز ٹھیک کریں یا نہیں جائے گا بیک لیش کہاں بیک لیش کہاں جائے گا ایک 2 لائیویں لگی ہوئی ہے آپ لے لے اس کی فرقان کی لے لے آپ میر سلیم کی لے لے وہ سارا دن گستاخی کرتے رہے گے ایسی باتیں پڑے رہے گے ایک مسلمان گزرتا ہے پوری دنیا سے مسلمان گزرتے ہیں ٹریفک گزرتی ہے وہ سنے گا اب ایک مجھے بات بتائے میں مانتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان میں ایک اچھے سپاٹ پہ نہیں ہیں ہلکی سی بات ہوئی نقصان ہوگا اور غلط ہوگا ٹھیک ہے ظلم ہو جائے گا ایک چیز سسٹم ایسا ہے نہ آپ کنٹرول کر سکتے نہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں لیکن جو چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ تو کنٹرول کی جا سکتی ہے نا اسٹیریل بھائی ایک ہوگی یہ پہلا پوائنٹ اب آتے ہیں دوسری بات جو آپ نے کی تھی اسٹیریل بھائی میں صرف اتنا کہا کہ میں نے جو مین بات کرنی ہے وہ کروں آپ بھی ثانی صاحب کی لائف پہ پائے جاتے ہیں جیسے اتنا کہا کہ خاموش ہوں میں دوسری بات جو مین بات ہے کہ جی وہ حوالے پڑھتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سند جو ہے وہ کمزور ہے نہیں صحیح وہ گستاخی ہے I perceive the same way ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ چیز لگتی ہے اور آپ ان لوگوں پر ایمان لے کر آتے آپ نہیں کریں گے کرنے کا فائدہ کیا پھر سوال اٹھے گا چیزیں جمع کیسی گئی لکھنے والے کون تھے کیا وہ حجت ہے یا نہیں ہے آپ بات تو کر دیتے ہیں نا تو پلیز ذرا سوچا بھی کرے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے جزاک اللہ ہاں جی ہو گئی گل ہاں جی یہ تو یہی ہے کہ میں تے وہ سمجھنا کہ وہ چیزاں جڑیاں نے وہ اپنی صحت کے اعتبار نال اور اپنے حوالے کے لحاظ نال بلاتے کیوں ہے اسٹیریل صاحب مجھے کیوں بلاتے ہیں آپ لیٹس سے ابھی آپ نے کہا چوچو تم آ جاؤ ادھر مجھے کیوں دعوت دے رہی ہے کہ میں ان چیزوں کو بیٹھ کے ڈیفینڈ جب میں بلیو ہی نہیں کرتا تو یہ چھپ کیوں رہی ہیں
कहाँ जो लिखने वाले वो मर गए। एक मिनट नफसे चूचू साहब, आपको फुरकान की ब्रॉड पता लग रही है, आपका जो ऑफिशियल MTA चैनल चल रहे हैं, हजूर के खुतबे आ रहे हैं, आप वो क्यों नहीं सुनाते पाकिस्तान में, ताकि लोगों के दरमियान में जो गलत देख ले आप। मैं एक वक्त एक से बात करूंगा, आप बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे तारिक साहब से बात करने थे, ब्रदर से बात, उनसे बात हो रही है। आप बराए मेहरबानी, आप में बहुत ज्यादा किल्लत क्या नाम है इरफान रह चुकी है, तो आप बराए मेहरबानी रखें। तो रियल साहब, आपने मुझे क्यों दावत दी जब मैं वो खुद बिलीव ही नहीं करता? आप बिलीव नहीं करते, मैं बिलीव नहीं करूंगा, और उधर आगे मैं बोल दूं लानत तो लिखने वाले पे, फिर ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना, एक मिनट, अगली बात जो करता हूँ, मेरी बात सुने, अगली बात जो है ना इसके मुताल्लिक, वो ये है कि वो लिखने वाले 500-700 1000 1200 साल पहले लिख गए, लेकिन जो आज इदारे उन्हें छाप कर उनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं और अपने इदारे चला रहे हैं, क्या हमारे जो ये बोर्ड्स हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाले, वो सोए हुए हैं? उन्होंने आंखों में कुकरे पड़े हुए हैं, वो क्यों इनको छपवा रहे हैं? सेंसर बोर्ड कहाँ है? आप कहते हैं ठीक है, ये आपका मैसेज है कि इन चीजों को बैन करना चाहिए। बिल्कुल। अब अल्लाह ताला आपका भला करे, आपको दीन और दुनिया में सुर्खरू फरमाए। अब आप मेरे पॉइंट पर आए, जज़ाकल्लाह। नहीं ठीक है, अब इसी तनाजुर में उसामा भाई, इसी तनाजुर में इनसे ये पूछ लें, सीरत महदी की सारी रिवायात जो 150 साल से छपती आ रही, इनको काबिल कबूल हैं? फिर मैं भी जरा कड्डा उठा दो बार था। तो स्टे रियल भाई, उन्होंने आपने उनका वैसे सुन लिया, अब आपने उनका मुतालबा सुन लिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तरीका सही है आपकी नजर में कि आप हमें कहते हैं कि आओ मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, यहां तक ये सुना सकता हूं, जब पूछा जाए रेफरेंस दे दो, आगे से रेफरेंस भी नहीं निकलना, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैंने इधर चला दी तो सब लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, सब लोग के मुंह खुले के खुले रह जाएगा कि जवाब क्या दिया गया था यार। बात उसको दाल कहते हो यार, वाला को नहीं सी बात करके गुस्ताखी करके ओ वाला को नहीं सी। तो फेरियल साहब, जो आप जो वो करता है, वहां पे सिर्फ इबारतें पढ़ के ये नहीं कहा जाता कि इन बातों को बंद करो, वहां पे वो बातें उसमें से निकाली जाती जो वहां पे लिखी भी नहीं होती, खुद निकालते हैं बैठ के फिर और बीच में से। मैं आपको एक दलील देता हूं, आज दलील देता हूं आपको, ठीक है? मैं जाना नहीं था उधर, अब मुझे जाना पड़ेगा। बड़े मोहतरम शख्सियत है उनकी, डॉक्टर जकरिया साहब। एक बंदे ने मिर्जा साहब पे एतराज किया, मुझे नहीं पता एतराज क्या था, और फुरकान खोल के उन्हें एक इबारत पढ़ाता है, किसी जिस इबारत को आप कहते हैं ना कि वो इबारत जो सही नहीं है, वो इबारत पढ़ता है और उसमें ये लिखा, वो से ये साबित करने की कोशिश करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ला हराम खाते थे। ये मैं बड़े एहतियात से लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ये बात उधर उसने बोली, ठीक है? तो डॉक्टर साहब ने आगे से एक जुमला बोला कि ये आप मुझे दे दे, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो मैंने अब उसे ये इल्जामी जवाब देना है और उसे समझाना है तो मिर्जा साहब पे एतराज ना करें। अगर वो इबारत गलत थी तो उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सीकर भाई, क्यों पड़ी जरूरत उन्हें अगर गलत थी तो? उसामा भाई, असल में ना देखे, मैं माजरत वो चलते बाकियों के पास, देखे या तो हम सब जो है ना वो हम तय कर लें कि हम सब बददियानत हैं, तो फिर तो ये मामला चल सकता है। लेकिन अगर हम ये कह देना कि हम दयानतदार है, ईमानदारी से बात करें, ये तमाम चीजें सिर्फ इसलिए की जाती है कि मुसलमानों का मुंह बंद हम कर सके कि जो मिर्जा साहब पे अगर करोगे तो आगे से हम ये करें। और बड़े लोगों ने, सीनियर लोगों ने कहा है कि लाइवा इस वे तो लगिया ने चौके मिर्जा साहब ते बहुतानबाजी होंदी सी, मिर्जा साहब नु गाला कट दे सकते लाइवा फिर इसलिए लाइए मुकाबले दे विच। तो सिर्फ ये हो रहा है, ये कोई खिदमत खल्क नहीं है। अभी स्टेरियल भाई मेरे सामने बैठे, इन्होंने खुद बताया इनका खराज हुआ था। मैं अगर अभी इबारत खोलूं बशीरुद्दीन महमूद साहब की, उन्होंने इनको क्या कहा हुआ है बताओ, इखराज वालों को पता ना आपको क्या कहा हुआ? ये कबूल करेंगे अपने लिए वो अल्फाज? मैं इनको कहूं यार स्टेरियल साहब ये क्यों है आपके लिटरेचर में ये चीजें, और वो तो अपना अल्फजल छपा हुआ है। स्टेरियल भाई पता है की क्या उन्होंने, पता तनु? नहीं, मन नहीं पता है, लेकिन अगर बाप जड़ा गुस्से नाल औलाद ਨੂੰ कुछ कह दे ते औलाद को कह दे कि
ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਫੁਰਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ वापस आने टॉपिक पे आखिरी बात आखिरी बात करें ह्यूमन एक्टिविस्ट भाई भी आए उनसे भी थोड़ा इसके बाद में कर ले फिर वो वापस उस पे चलते हैं मेरा एक सवाल पूछना है आप ये सिर्फ दो चीजें ये सिर्फ ये लेके जाएगा ये लेके बहुत ज्यादा जरूरी है जब अहमदी नए नए असूल ये तो हो गया आपने फुरकान की बात की उसका जवाब था अब आते हैं कि गालियों पे आखिरी बात है जब अहमदी नए नए असूल निकालते हैं और वो असूल ये है मैं आपको मिसाल देता हूँ असूल ये था कि तुम्हारे नबी पर तुम्हारे अली पर ये जो लफ्ज तुम्हारा है यार छाड़ दे इन चीजों को मेरी गल सुनो ना सब एक 30 सेकंड आई विल ओनली टेक 30 बात की है नहीं ये भी मैं तो इसको भी तौहीन समझता हूँ उन चीजों को दोहराया जाए जरूरी तो नहीं मैं दोहराना नहीं हूँ मैं वो नहीं ऐसा पूरा जुमला नहीं मेरा सुना फिर जिन्होंने कही है उनकी तौहीन नहीं समझते दोहराना तौहीन समझते हैं नहीं देखिए जायद साहब गल सुनो बल्दी ते तेल नहीं पाईदा पानी सुट्टीदा बुझाईदा ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ एरिया साहब असूल तो सुनने ना मेरा ये एक नया असूल बनाया गया है असूल ये है कि हम गाली देंगे लेकिन हम साथ लगा देंगे लफ्ज तेरा या तेरे उससे होगा ये जब हमसे कोई सवाल करेगा ना तो हम बोले कि ये हमारे मोहम्मद नहीं है नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है गाली दे के आगे से ये अली जिस अली को आप मानते हो वो अली नहीं है वो मौला अली हमारा और है आपके और हमारे और अगर आपका तो गाली देना जायज हमारा तो नहीं जायज अगर ये असूल आप इंप्लीमेंट करते हैं अहमदीज इट गिव्स ए लाइसेंस टू अब्यूज फिर आप किसी को कटहरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे और ये अहमदी करते ही है जब भी आप इन लोगों से पूछते हो क्या कहती है नहीं बाकी तो कोई नहीं करता ना ये नहीं ये जो तेरा उसामा भाई माजरत के साथ मैं इसको मुनाफकत कहना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कहूँगा तारिक साहब की मैं इज्जत करता हूँ जिस बंदे ने नाम लेके हज़रत ईसा हज़रत मूसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे मोहम्मद दे मुँह नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबाशत जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना अहमद जट की ब्राड पे उनके साथ बैठे होते हैं हमें कहते हैं तुसी सिद्धू जट ने नाल बिठाया सी ना मुनाफकत नहीं ना तारिक साहब बिल्कुल नहीं था मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਾ नहीं देण लगे सी लामा ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਮਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਮਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਾਮਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ अस्सलाम वालेकुम मुनाफकत तो है जे मैं कहूं मैं नहीं बहंदा मैंने कि मैं सारे नाल बहना मैं तो तारिक साहब क्या हाल है आपका ठीक है आप हां जी पहले में फर्क है सिर्फ मुझे इस बात का जवाब चाहिए मैं यार जवाब दिया है तो सलीम मीर की ब्रॉड पर आपका मुंह क्यों लाल हुआ था वो क्या शर्म से क्यों लाल हुआ था आपका नहीं किस गल तो लाल होया ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਟੇਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ वो आपकी ऑडियो है मेरे पास आपकी ऑडियो है वो नहीं छोड़ दें वो आपकी क्यों लाल हुआ नहीं तो मेरा क्यों मुंह लाल होना ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੰਟੈਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ जब उसने कहा कि मुसलमानों की औरतें पक्की उम्र की भी बेवा भी दस्तयाब हैं कोई रिश्ता कराओ साडे कोल हर उम्र ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਨੇ ਸਟੇਰੀਅਲ ਦਾ हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੇ ਬਸ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਊਂਠਣੀ ਯਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟਿਆ ਯਾਰ ਕਰ ਬਸ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਮਾਨ ਰੁਕ ਭਾਈ, ਜਾਓ ਬਸ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਊਂਠਣੀ ਯਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਫੁਰਕਾਨ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਫਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹੁਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੱਬ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਸਾਰੁੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਸਾਰੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰ ਉਮਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੇਗੈਰਤਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਈ ਨਾਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ उस्मान भाई एक मिनट सेरियन साहब ठहरो एक मिनट ठहरो क्या हो गया भाई एक मिनट ठहरो एक मिनट ठहर जाओ दो में मेहरबानी करके म्यूट लाओ दो में म्यूट लाओ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ मेरा म्यूट ये मैं म्यूट खुला भी ना बोलना हो तो मैं ठीक हो गया ये बहन आपने ये पोस्टर चेंज किया है ये क्या है जरा मादरत मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही आप पढ़ के सुना सकती है क्या हाँ जी आप इसके ऊपर सब पॉजिटिव इसको लें प्लीज़ कोई ऐसी बात नहीं है मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ समझे मेरी बात मैंने लिखा है प्यारे हजूर मैं आपसे अपने करदा और ना करदा गुनाहों की माफी चाहती हूँ ऐसे लिखने वाली इबारत ही नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ को नहीं कोई सदर जमात कोई नहीं दे रहा कोई जवाब स्टेरियल भाई सुन ले मेरे पहले पे मैं हटा नहीं ये आपकी ठीक है आप ये वहीं ये जहाँ का मसला है वहाँ से ही हल होना है ये यहाँ पे आप गैर जरूरी तौर पर ये इबारत लगा रही हैं मैं पढ़ती हूँ ना फिर मैं हटा दूंगी अगर वैसे सुनते लो वो शायद कोई अच्छी गाली लिखी है वैसे सब सुनते मैं ऐसे ज्यादा खत में लिखे हुए नहीं तू क्यों परेशान होना अच्छा खत तुझे भी लिखा प्यारे हजूर मैं आपसे अपने करदा और ना करदा गुनाहों की माफी चाहती हूँ जिससे हजूर नाराज हों उसको नींद कैसे आएगी मेरे खत आप तक पहुँच नहीं रहे इसलिए अब सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे माफ़ी की दरख्वास्त है और साथ ही दरख्वास्त है कि मुझे खराद और मुकाते की सज़ा का रीज़न बताया जाए ताकि मैं आइंदा वो गलती ना कर सकूँ वसलाम आपकी बहुत ही गुनहगार बेटी सफ़िया नहीं देखो ना ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫਜ਼ੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਟਰੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ आप लोग इंसानियत के नाते समझ लो मसला मुझे 1 सेकंड मौका दीजिएगा जी और प्यास सवाल मेरा भी वही सी जिड़ा उसामा ने पूछ लिया है कि यार यहाँ पर पाकिस्तान में हम कहते हैं मेरे भाई जिस बुजुर्ग को रोका गया मोटरसाइकिल पर जो अहमदी थे कि भाई चेक करवाओ कहां से आ रहे हो जुमा पढ़ के आ रहे हो कहां दिखाओ कौन से कागज है कौन से कागज रखे हम लोगों ने ब्रॉड पर सब ने कंडेम किया कि यार ये क्या हरकत है किसकी जरूरत हो कि किसी बुजुर्ग आदमी को ऐसे किसी अहमदी को रोक ले इसको किसने इख्तियार दिया
भाई हम कोई इंसान तो है ना, हम कोई भेड़ बकरी का थोड़ी है। हमने क्या अपने निजाम के खिलाफ बात नहीं की? ये क्या जिसको हमारे सर पे थोपते हैं। सफिया जी मैं आपसे पूछता हूँ, जरा सवाल का जवाब देना जरा। जब हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो हमें क्यों कहा जाता है तो देखो तुम लोग पाकिस्तान में एमडी के साथ, निजाम ही है ना पाकिस्तान का। क्या हमने अपने निजाम के खिलाफ तनकीद नहीं की? चाहिए क्या था तनकीद, कहाँ करते जाके पाकिस्तान में चाहिए था ना हमें, लेकिन हमने टिकटॉक पे इजहार किया ना ताकि बाकी लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, बाकी लोगों को पता चले कि यार ये वाकई गलत है। अगर कोई 2 लोग 3 लोग 4 लोग 10 लोग, हम तो इतनी हमारी औकात नहीं है, 4 लोग ही अगर हमें सुनते हैं तो हम उनको लीड करके ये समझाएं कि भाई आम बंदे का ये काम नहीं कि किसी एमडी को पाकिस्तान में रोके, उसके ह्यूमन राइट्स को सलब करे। इसी तरीके से अगर उस बहन का वो समझ रही है कि उसको ब्लॉक कर दिया है, आप लोकल से राब्ता करें। लजना ने उनको नहीं बुलाया, सदर ने उनको नहीं बुलाया, अबरबी ने उनको नहीं बुलाया, अमीर जमात ने नहीं बुलाया, उमूर अमन ने नहीं बुलाया। यार अगली को आवाज क्या चाहती हो गला ही दबा देना है। अगली अगर कह रही, वो यहाँ बैठ ही गई है बेचारी लगाकर, वो कह रही है शायद भाई मैंने खत तो लिखे हैं हुजूर को, मुझे जवाब नहीं आया, मैंने अगर बाकी खत लिखे हैं उससे पहले लिखे मुझे जवाब नहीं आया, चलो मैं यहां लिख लूं, क्योंकि हजूर तक टिकटॉक की लाइव तो पहुंच गई है ना, हजूर तक ये हो सकता है यहीं से ये लेटर भी पहुंच जाए। तो थोड़ा साथ लैन दियो ना, तुसी कहते हो सा भी ना लवो। असी अपने निजाम ते तनकीद कर रहे हैं यार, सानू किसी ने गद्दार नहीं कहता ना, किसी की जरूरत है सानू गद्दार कह दे। और निजाम नहीं तो आपका निजाम इतना कमजोर है कि उसको जरा सा झोंका उड़ा के ले जाएगा। आप लोग इतने डिफेंसिव हो जाते हो मेरे भाई, इस तरह नहीं फर्क पड़ता। हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों दुनिया पे एक बंदा भी जिंदा ना रहे, इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क नहीं पड़ता कि यार हमारी वजह से माज़अल्लाह इस्लाम को कुछ हो जाता है। आप लोग इतने डिफेंसिव निजाम को लेकर, वो बंदे उस आवाज उठा रही है, उसकी आवाज तो उठ लेने दो यार। इधर ना करे इधर ना करे, वो क्या लिखा, गालियां लिखी है उस पेज के ऊपर। कोई खुदा का खौफ करो यार, वो अगली कह रही है तो उसको कह लेने दो। फिर अपनी जात आप लोगों की इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार उनका टॉपिक उठाकर आप ले जाते हैं। यार मेरे नाल मसला लड़ाई करनी है, कोई मौका की मतलब तारू लग रहा सी मौका नहीं देना किसी को, आओ जिस टाइम मर्जी आओ यार, लेकिन इधर छोड़ दे खुदा रा। 4 दफा कह के भाईजान सानू माफ कर दियो। पहले कदी नहीं आए तुसी, पहले कदी नहीं आए ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ वो तो अपनी अपनी इंटेलिजेंस है ना जी गेम पाने सारे। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ स्टेरियल साहब एक मिनट फिर मेरे पीछे पै गए, ठहर जाओ स्टेरियल साहब, इतने हर बंदा गल सुन लो, गल सुन ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਉਹ ਪਾਏ, मैं की स्टेरियल साहब इतने हर बंदा गेम पानी आया है, कोई बहुती बेहतर पा लेंदा किसी कोलों पैंदी नहीं, बस छੱਡ दियो इस गल नु। दूजी गल है टॉपिक पे आ यार ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੋ। टॉपिक पे आ जाओ स्टेरियल साहब। लो जी मैं ते नहीं कर सकता सी, स्टेरियल साहब ने टॉपिक ते आंदे ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾ ਤੂੰ ਦੋ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ यार स्टेरियल साहब बस कर दियो प्लीज, लीव इट यार, नहीं लीव द टॉपिक यार, मेहरबानी करो यार। अपने ते गल आंदी है ते लीव। मैं इतनी गल कीती तुसी करना चुंगल रखी सी, मैं इतनी तकरीर कीती है यार एमडीए दे बारे च, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸਟੇਰਿयल साहब हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਣ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਲਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਟੇਰਿयल ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। अभी जरा मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं ना कि प्लान किया गया है, मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि मैं हजूर को ये अपनी तरफ से ये खत लिख सकता हूँ कि हमारी बहन के साथ ये मामला है, हजूर अज़रा शफकत, इस पर नज़रसानी फरमाई जाए और उन्हें अज़रा शफकत उनका इखराज वापस लिया जाए। मैं आपकी ये ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੌਪ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਈਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ टेरियल भाई आप ये लिख दें बेशक कि वो ये कह रही हैं, आप अपने आप को बेशक बीच में ना डालिएगा कि मेरी साइड ले रहे हैं, आप सिर्फ ये कहें कि उनका वो ये कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है और मेरी आवाज़ हजूर तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूँ कि उनको रोका जाए या तरीके से हैंडल कर लें, कुछ कर लें, क्योंकि इस तरह से जमात की जो है वो ये रुख जा रहा है कि कोई भी किसी से पूछ के बगैर हर काम कर जाए और अगला जो है बस सिर्फ सब्र करो। इतना ठीक है, जो मुझे इंशाल्लाह समझ में आएगा मैं इंशाल्लाह ये मैं बस चाह रही हूँ। जज़ाकल्लाह। ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗਾ, 6 ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ 8-8 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਦਾਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਖਤ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। नाम बताना चाहता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है कि निज़ाम में इसी तरह होता है। जी, निज़ाम में भाई बस ये होता है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी जो है ना वो गलत फहमी में या कुछ कर रहे हैं जो चीज़ बढ़ती जा रही है। किश्ती नूह में जो है ना, हज़रत मसीह मौद का फरमान है कि उससे बड़ा बदबख्त कौन है जो दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनता है। ये बाज होते हैं ये अंदर भी बैठे हुए जो ठोकर का बायस बनते हैं दूसरों के लिए, लेकिन मोमन वही है जो आजमाइश पे पूरा उतरता है। ਉਹ ਕੱਲ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। मुझे 40 साल तो क्या 400 साल भी मंजूर हैं, लेकिन जो एक गलत रुख जा रहा है कि जमात में इस तरह से नाइंसाफ़ी होती है और कोई वारिस नहीं होता, पीछे लावारिस हो जाता बंदा, ये गलत है। बात यह है कि किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौज़ बिल्ला जो है वो आगे हूँ या बड़ा हूँ। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि कोई अपनी चरब जुबानी से मेरे से भी गलत फैसला ले जाए तो वो ये ना समझे वो हक ले गया, वो आग लेके गया अपने घर में। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मामला हुआ है, अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती करवाई है तो वो आग लेके जा रहा है, आपका उस पर कोई ऐसा मनफी असर नहीं होना चाहिए। टेनियल भाई जिंदगी रुक गई है, इससे मुझे ये फायदा होगा। और जिंदगी बाजी रुक गई है तो मसला वहीं पे ही है, वहाँ से इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये हफीज शेख साहब जो कह रहे हैं जमात अहमदिया लाहौर में आज तक एक भी इखराज नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ वो मुझे ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। नहीं निकालेगा, वो मुझे अक्सर इनवाइट करते रहते हैं कि वहां से कोई नहीं निकालता। अब उनका अलग सिस्टम है, हम क्या करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, जी बाजी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, दुआ है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। वैसे बाजी, मैंने एक मैसेज आपको इनबॉक्स में किया था अपनी दूसरी आईडी से, आपने वो एक्सेप्ट तो किया, उसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे। कौन सी आईडी है दूसरी? जी, कलमुल मसीह के नाम से एक आईडी है। अच्छा, मैं देख लूँगी। हाँ जी, मैं अभी इस वक्त इसलिए आया हूँ कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं एड्स के नाम के आईडी से, ठीक है, तो क्या ये जमात के हक के लिए बातें कर रहे हैं या जमात के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं? यहाँ पर मैं सबको उतार दूंगी, ऊपर आ जाएं अहमदी भाई। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं कि ये जमात के हक में ब्रॉड लगाते हैं या इसके खिलाफ? इसका जवाब तो अभी दे सकते हैं, मुतकल्लम खुद ही बता सकता है जवाब। हाँ, नहीं, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं कर लेता हूँ भाई। सीकर नियत साहब, वो हमारी नियत थोड़ी जानती है।
हाँ नहीं हम तो जानते हैं ना आप। अच्छा एजाज भाई, आपने अल्फाज इस्तेमाल किए एड्स, आपने अल्फाज एड्स इस्तेमाल किए, ये मीनारा डाल के इस्तेमाल किए? आपसे मैं पूछ रहा हूँ बाजी, आपको इल्म है कि ये किस मकसद के लिए, या आपको नहीं है इल्म, ये बता दें मुझे। देखें एजाज भाई, ये अपनी ब्रॉड्स के ऊपर जिस तरह से अहमदी तबलीग कर रहे होते हैं, तो ये जो भी कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर जब ये बैठे होते हैं किस चीज़ के लिए लगाते हैं? जमात अहमदिया की तबलीग करते हैं या उनकी मुखालफत में ब्रॉड लगाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। और या ऑफ कोर्स जिस तरह से हम लोग जमात अहमदिया की तबलीग करते हैं तो ये उसकी लगाते हैं। तो जवाब आपको पता है कि ये आपके मुखालिफ है या आपके अपने हैं? एजाज भाई, इसका जवाब बड़ा कड़वा है, इसलिए कि मेरे अपनों ने जो है मुझे कहा था कि आप इनके साथ बैठते हैं तो फिर आप ब्रॉड से उतर जाएं। तो आपके अपनों ने जब आपको कहा कि दुश्मनों के घर ना जाओ, और आप दुश्मनों के घर जाके अपने जो है ना आपके साथ जो हुआ है वो उनको सुनाने लग जाए, हाँ, तो ये किसी अक्लमंद के काम होते हैं या जबरदस्त। अच्छा बहन, मेरा भी आपसे एक सवाल है। रुक जाओ सीकर रुक जाओ। आपसे मैं मुखातिब नहीं हूँ भाई, वो उससे मुखातिब हूँ। बहन मेरा आपसे एक सवाल बात पूरा कर लूं उससे ना, आपकी बहन से। आप सारा दिन बहन मेरा आपसे एक सवाल है। रुक जाओ आप मेरा नाम ना लेते ना, नाम ना लेते हमारा नाम रुक जाओ, तुम्हारा नाम तो है ही नहीं सीकर भाई, अपना नाम। ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है, हमें क्या पता तुम्हारा नाम ये है। अच्छा बाजी, मैं मुझे ये बता यार, एक सेकेंड सबर यार, सबर। ये तो खुद शिया है, ठीक है? अच्छा सबूत दे इसका, सबूत दे इसका, सबूत दे। ये शियाएं पड़ता है। हाँ, मैं दे देता हूँ, सबूत भी दे देता हूँ। दो सबूत दो। नहीं, मुझे इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। एक मिनट ठहरे बहन, इसको क्या सबूत दे, इसको क्या सबूत दे? इनको चुप कर दे, या तो बाजी मैं आपसे बात करने आया हूँ। नहीं, इसको क्या सबूत दे, इसको क्या सबूत दे? या तो इनको चुप कर दे, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बात करने आया हूँ सिर्फ। अच्छा बहन ऐसे है, मुझे एक बात बताए। चाहे देखे बहन, आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स कहे कि रसूल अल्लाह टॉयलेट में मरे तो वो आपका दुश्मन होगा, हमदर्द होगा? सुन लो, वो रसूल का दुश्मन हमारा था। ये बेगैरत बैठा नीचे, इसने कहा था, यही एजाज है, यही एजाज सबसे बड़ा बेगैरत है। खामोश कर दो, ये बैठा है वो, ये आपका हमदर्द है जिसने कहा रसूल अल्लाह टॉयलेट में मरे? आपने जो है ना इनकी बात का जवाब बहुत जल्दी दिया ना। इसने कहा, इसने कहा है रसूल अल्लाह टॉयलेट में मरे, इस बंदे ने। आप चाहती है ना कि देखो इसकी शक्ल। सीकर भाई चुप करें, इनको म्यूट कर दे। फौरन जवाब दिया है कि आपने बगैर सोचे, मैं मातम के निशान डालता हूँ कमर पे, तू समझ। हाँ सुन ले, आपने बगैर सोचे समझे जवाब दिए। इसी तरह आपके साथ ये खेलते रहते हैं, आपके साथ ये सारा दिन इसी तरह खेलते रहते हैं। आपको कहते हैं ये बताओ भाजी ये ठीक है कि नहीं, आप कहते हैं हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। फिर ये कहते देखो जमात अहमदिया की एक लजना ने ये बात कर दी, ये देख लो भाई, ये देख लो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है बाजी, और ये मैं आपको पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ, ये नहीं, हम सुन रहे हैं ना, ठीक है, हर एक चीज को हम भी देख रहे हैं। जी। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जमात अहमदिया के दुश्मन है ना, इनसे आप खैर की उम्मीद ना रखें। अगर भाई बहन में झगड़ा होता है ना, तो वो भाई बहन ही ख़त्म करते हैं, ना कि आप अपने दूसरे दुश्मनों से जाके आपके अपने भाई बहनों का मसला ख़त्म होगा। दूसरा ये कि जो चीज़ हो रहा होता है उसका डंडोरा नहीं पीटा जाता, उसको राज में रखा जाता है। और मुखालफत अगर किसी चीज़ की हो रही हो ना, उसको बर्दाश्त करनी चाहिए, ना कि हर दिन मैं ब्रॉड लगा के वो चीज़ें सबके सामने बयान करता रहूं और लोग मुझे कहे कि भाई ये लोग मेरे पीछे क्यों लग गए, मेरी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वजह से डेली जो है ना जमात अहमदिया के बहुत सारे लोगों के दिल दुखते हैं, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है, वो तरीका नहीं। आपको चाहिए ये कि आप तौबा करें और जो चीजें हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ आप और आपके हुजूर, ये नहीं कि आपने जो खत लगाया हुआ है लोगों के दिखाने के लिए कि भाई मैंने तो ये लिख दिया और उसका मैं भी प्रोपेगेंडा करूं, ये तो तरीका नहीं है। आपका और आपके हुजूर के दरमियान की बातें हैं, आप लोगों को क्यों बता रही है? आप लोगों को जवाब दे है या आप खुदा को जवाब दे है? तो आपको इन्होंने इस्तेमाल किया है, आपको ये भी पता है, लेकिन आप ये अगर चाहती है ना कि ये सारी चीजें जारी होते हुए आपको खुद उधर से माफी मिलनी है, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप मुसलसल वो चीज कर रही है। और दूसरा ये कि आप लोगों से पूछ रही कितने टाइम में माफी होगी, कितने में नहीं होगी, और मैं वो चीज जारी भी रखूं और मैं कहूं कि मुझे माफी भी मिले, तो ये तो नहीं है ना बाजी। इतनी तो समझदार आप भी है कि मसले को आप उसी तरीके से लोगों के सामने डिस्कस करती रहे और फिर कहे कि हल भी निकाल लो। जिस चीज से रोका जाए उससे रोका भी नहीं जा रहा,
फिर भी आप जो है ना आपने अपनी ब्रॉड लगा दी, इनकी ब्रॉड पे नहीं, और इन्हीं मुखालिफिन को आपने इधर बैठाया हुआ है, तो फर्क क्या हुआ? चले अब आप आ गए हैं ना, तो अब आप तो मसला हल कर देंगे। अब आप मुझे ये बताएं। मैं मसला हल करने के लिए मैंने आपको मशवरा दिया कि ये चीजें छोड़ के हाँ जी, वो तो मसला आपने ठीक है, अपने आप आप को महदूद करे इन लोगों से, इन लोगों के कॉन्टेक्ट से थोड़ा साइड पे हो जाए, अपने और अपने लोगों में रहे, जमात में एक्टिव हो जाए, और ये सारी चीजें छोड़ दे। ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बच्ची तो नहीं नहीं पता जमात में एक्टिव कैसे हो जाऊं, मेरा तो बहन मुकाबला मौका दे, अब तरह कितनी हो जाए तकरीर कि चलेगी जब क्या? आपको आप जो होस्ट हैं, स्पीकर- ये तो गलत बात है ना। मैंने कहा कि शायद कोई नया मशवरा आ जाए, वो ये मशवरा मैं नहीं, वो दे दिया उन्होंने मशवरा, उन्होंने कहा हमसे दूर रहे, अब मुझे मौका दे दो। सीकर रुक जा, तुमसे तो मैं बात करने नहीं आया हूँ भाई, तुम्हें तो यार मैं तुम बोला चुप करो। बहन मैं आपसे जरा भाई, मुखातिब तुम हूँ, आप अपना होस्ट हैं। फिरका बता दो, तेरे से तब बात होगी। फिरका ठीक बता है, दो कर- कौन सा? ठीक है, ठीक, आपसे मैं उससे बात बात नहीं कर रहा। होगी, आप बहन म्यूट मौका करो। दें जरा, बहन नहीं, मौका दें। इतने टाइम अच्छा, जब मैं बहन बैठ ऐसी रहा है। था आप बात कर रहे थे ना, अभी जब तक मैं मौजूद अच्छा यार, हूँ, रुक जाओ ना। अच्छा बहन उसके ऐसे है बाद बाजी मैं आपको बता रहा हूँ इन यार, लोगों ये से, कब चुप करेगा ये यार? जो जिन्होंने एड्स के नाम की आईडी बनाई है ना, एजाज साहब ये तरीका अपनाओगे तो फिर आप भी बात नहीं कर सकोगे। तीन ये बंदे जो तरीका है ना, अपनाओगे फिर आप भी बात नहीं कर सकोगे अरे यहाँ। अरे भाई सैफी को ले आओ, सैफी को ले आओ। ये आपको तरीका चाहते हैं बनाओगे उसी तो की वजह यहाँ से पे आप भी इखराज हुआ बात है। नहीं कर सकोगे। सैफी नहीं को बोलने लेके आओ, दूंगा उसी आपको की भी वजह मैं। से इखराज हुआ है। देख आपको लो भी नहीं भाई, बोलने दिया जाएगा फिर अगर ये तरीका इख्तियार करोगे। नीचे करे, इनको नीचे करे, ये क्यों नीचे करो भाई? क्यों नीचे करो? ये लेक्चर चल रहा है आपका, करवाया भाई, ये लेक्चर चल रहा है आपका, इनको नीचे करो। लेक्चर चल रहा है यहाँ पे आपका, इसकी वजह से लेक्चर देने आए हो यहाँ पे। जमात अहमदिया को गाली देते जाहिद भाई एक मिनट, और जाहिद भाई आपने एक अपनी मिनट, ब्रॉड पर जो है ना अहमदिया एक मिनट, डिकोडेड के नाम की ये गालियां बिठाई हुई है, ये जमात अहमदिया को गाली हाँ, है। सैफी ठीक ने है ना यार, हजूर बस किसान ने कर। गुस्ताखी की थी, सोच लो। बाजी ने ब्रॉड लगाई जिसकी सजा मिली है उनको। ना, ये ना, ना। गुस्ताखी करने बात वाले ये नहीं, के ऊपर आप कोई लोगों सवाल ने नहीं। इस्तेमाल किया है हमारी सैफी ने जो गुस्ताखी की, बाजी ने स्टैंड लिया रसूल अल्लाह की खातिर, इसलिए इखराज हुआ है। इसलिए आप आए हो कि आप अभी सैफी जो बात हो रही है ना, उसकी आप ब्रॉड गौर पे से बैठ जाओ। सुन रही है, जाओ अगर उसकी मेरी ब्रॉड पर आवाज जाओ, आप बैठ तक आ रही जाओ उस है, पे, तो ये और जो जाके बाजी के लिए आवाज उठाओ। आइडिया है ना, ये भागने ये लगा तो हो है, ये जाता है, भागने लगा है, ये भागने लगा है, सबको ये नीचे भागने लगा है। एड्स हो मैं जाती है, गारंटी से कह रहा हूँ, ये अपनी भागने ब्रॉड लगा पे है। बाजी के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? उस्मान भाई ये भागने लगा है, ये भागने लगा है। अपनी ब्रॉड पर आवाज क्यों नहीं उठाते? अपनी बहन के लिए क्यों आवाज उठा रहे? जो है ना इसी तरह जारी रहेगी, और अपनी ये बहन के लिए से क्यों आवाज बता रहा हूँ, नहीं ये उठा भागने रहे? लगा है, ये भागने लगा है। एमडी भाई क्यों ठीक बहन है? के लिए आवाज उठा रहे? तीन बंदे जो है ना लगे हुए हैं ताकि आप तक वो बात दूसरों ना को आके पहुंचे। लेक्चर देना आसान है, जब तक मजलूम के आपने साथ खड़े बाजी नहीं होते इन पहले। लोगों का साथ जालिम हो, नहीं छोड़ना ना, जालिमो निजाम इन बनाया लोगों हुआ के है, साथ इंसाफ बंदा देते बैठता नहीं है हो, ना, और जो इंसाफ वही चीज मांगे, हो जाती है। जो उसका साथ दे, उसके खिलाफ खड़े होते हो आके। इनको उसको उतार बातें दे, करते हो। और उस्मान भाई एक मिनट रुक जाए, उस्मान भाई एक मिनट रुक जाए सारे। इनको उतार दे। एजाज साहब ये उतारते जो हैं, रुक जाए। स्पीकर नाम ओ है, रुक जाओ, जाहिद ओ नाम है, भाई, ये जो रुक बंदे जा, हैं ना, रुक जा एक मिनट, जिनका रुक जमात जा, उतारते अहमदिया से हैं, ताल्लुक नहीं है, इनको उतार दे बाजी। उतार देते हैं, सबर कर लो, आपको आवाज उतार आ रही देते है हैं। ना? वो आपको उतारते आवाज हैं आ रही है? भाई, जिसको इनको बहन उतार को दे। आज यहाँ पे समझाने आए हुए वरना ना, मैं उतर इस जाता बहन हूँ का और भी बात इखराज नहीं हुआ था, इस बहन सही का है। भी इखराज नहीं हुआ था जब आप तुम लोगों ने इस उसको तरह ब्राड से करें उतार ना, दिया था। इस तरह और करे। तुम्हें उस दिन गैरत आई थी जब अपनी ब्राड से उतार के इनको कहा था कि आज के बाद इधर नहीं आना। आज इधर क्या करने आया तू? आ गया हूँ, जब तुम मैंने लोगों ने इस आपको बहन बात को अपनी बता दी। ब्राड से उतारा था, बेगैरत मैंने आदमी, बात बता दी, जब इसी सुनिए बहन दे। को अपनी ब्राड से उतारा था देख लो, और देख। इसको कहा था किसी ने कि नहीं आज के उतारा। बाद इधर नहीं आना, इसको अपनी ब्राड से तुम लोगों ने निकाला था। वो खुर्रम राना गंदी शक्ल वाला, गंदे चश्मे वाला भैंगा, जाहिद भाई उसने कंट्रोल। उतारा था इस बहन को। देख लो भाई, ये आज तू इधर आ गया है, आज तू इधर आ गया है, इनको उतार दे। जब तुमने उतारा था गैरत आई थी, होना है ना, गैरत थी तुम लोगों के अंदर जब इस बहन को उतारा था। मुबारक हो। मैं तो एक जब भाई तुमने की इस बहन को नस्बत अपनी ब्राड से उतार के भेजा था, तुम्हारे अंदर गैरत थी, अगर गैरत थी इन तेरे गंदे अंदर। लोगों के साथ आप तूने बैठी खुर्रम को रही रोका था, तो आप सफाई की तरफ जो है बेगैरत ना आदमी, वापस तूने नहीं आ खुर्रम को सकते। मना किया था आप कि हमारी दुनिया बहन के ने तूने साथ ब्राड से बेटी क्यों उतारा? की तरह हो जाएंगी। तूने गैरत अगर दिखाई थी उस आपने दिन, इन गंदे लोगों का इस साथ बहन दिया, के लिए उस तो दिन आप तूने सफाई गैरत की दिखाई थी। तरफ खुर्रम, ना रखें। वो खुर्रम राना आपने बेगैरत वैसे ही जिसने तो रह अपनी जाना बहन है। को उतारा था, और तूने आप गैरत और दिखाई से थी, सुनो ये मेरी तेरे एक अंदर बात। उस दिन गैरत आई थी, आप चाहती तूने हैं वहां पे आवाज उठाई ये थी, सारी तेरे अंदर कुछ चीजें शर्म हो, थी, आपके साथ तो हया बहुत थी, बहुत मुबारक हो तूने आपको। आवाज उठाई थी। बेगैरत कहता आदमी था यहाँ पे आ अपनी गया, तरफ से। इनको नीचे मैंने उतार आपको दो, कह दिया इनको है, नीचे उतार दो। बाकी आप रहे और इनके जाहिद भाई- साथ जाहिद भाई मैंने रुक जाए। मेरी बात बड़े आपने नहीं गैरतमंद सुनी। तुम, मेरे लिए तुमसे तो इतना बड़ा काफी बेगैरत था। कौन होगा? तू लोगों को बेगैरत मेरी कहेगा तरफ से यार। भाई,
अल्लाह हाफिज। जाहिद भाई निकल जा दफा हो जा। तो यार अपनी बहनों की वीडियो दफा हो जा। एक मिनट जाहिद भाई, कंट्रोल। अच्छा एक मिनट से मुझे दीजिएगा,
نیچے عدنان کو چیک کرو. اعزاز بھائی آپ کو میوٹ کیا جا رہا ہے, پلیز لیو. اندازہ کرو وہ ایک سیکنڈ کے لیے میوٹ نہیں ہوا. حالانکہ یار بات اتنی ہے میرے بھائی اعزاز, نیچے سن رہے ہو, پہلے تو میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. تم لوگوں کا اصل میں ذہن پہ سوار ہو گیا ہے, ایڈز تمہیں ہو گیا اس آئی ڈی سے, یقین کرو. اور یہ مہلک بیماری ہے, میں نے کم بندے بچتے دیکھے ہیں اس کے بعد. تم لوگوں کو ایڈز ہو گیا. دوسری میں آپ کو چیز بتاؤں, بینڈ ذرا آپ موجود ہیں؟ اس بندے نے موسیٰ کے ساتھ مل کر اپنی براڈ پہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ, یہ میں معاذ اللہ کہہ رہا ہوں, ٹوائلٹ میں مرے. یہ مرے کے الفاظ بولے اس نے, ٹوائلٹ کے الفاظ کے ساتھ. اس بندے نے موسیٰ کے ساتھ مل کے, میں حلفن کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, ان دونوں نے, پہلے موسیٰ نے آغاز کیا اس کا, پہلے موسیٰ نے کیا, اس نے اس کے ساتھ بات دہرائی, رسول اللہ ٹوائلٹ میں مرے معاذ اللہ. اس بندے کے منہ کے الفاظ ہے. یہ مزاج احمدیت یہ ہے. جب آپ کو اٹھا کے نیچے پھینکا تھا براڈ سے, تب یہ اس براڈ پہ موجود تھا. پوچھیں اس سے, خرم نے جب اٹھا کے نیچے پھینکا تھا اس دن تو ان کو غیرت نہیں آئی تھی کہ بہن کو اتار دیا نیچے, آج بہن کے پاس آ گیا ان کو اتارو. نہیں زاہد بھائی بات سنیں, معذرت, دوسری بات یہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ صرف اور صرف جس تکلیف پہ آپ کو سائیڈ پہ کیا گیا ہے, جس تکلیف پہ سائیڈ پہ کیا گیا ہے, اسی تکلیف کا اظہار اب بھی کیا جا رہا ہے. وہ ایک ہی تکلیف ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی صرف وہ بن جائیں کہ سیفی بھائی آگے ہیں, ان کو اوپر لے لیں. آپ ہادیہ باجی بن جائیں, آپ مسلمانوں کو حرامی کہیں, تو آپ مزاج احمدیت میں, آپ کا کوئی خراج نہیں. چاہے مسلمانوں کی براڈوں کے نیچے جا کے گالیاں دیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں آپ کو. دیکھیں سیکر بھائی بات کر رہا ہے نا, میں چپ کر کے, دیکھیں اس نے کسی کو بولنے نہیں دیا, بات کر رہے ہیں, سن رہا ہے, بیچ میں کسی کو بولنے نہیں دے رہا. پھر اگر کوئی اس سے بڑے پیار سے بات کر رہے, کہہ رہے ان کو نیچے اتار دو, ان کو. آج تو بہن کا سکا بن کے آ گیا ہے. جب بہن کو تم لوگوں نے خود اٹھا کے نیچے پھینک دیا تھا, جب تم لوگوں نے اسی بہن کے لیے دروازے خود بند کیے, جب تم اس کے راستے خود بند کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آج کے بعد نہ آنا, تو بھائی تمہارے پاس اگر وہ نہیں آتی, اگر وہ اپنی براڈ لگا کے بیٹھی ہیں, وہ جس کو مرضی لیں, جب تم لوگوں نے خود اس کے ساتھ قطع تعلق کیا, آج تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس بہن سے بھائی؟ کس منہ سے آج اس کو آ کے کہہ رہے ہو کہ آپ غلط کر رہی ہیں؟ کس منہ سے آ کے کہہ رہے ہو کہ اس نے کیوں بٹھایا ہوا کسی کو, اس کو کیوں بٹھایا, اس کو کیوں اٹھایا؟ کس منہ سے اس کو کہہ رہے ہو کہ ان کو نیچے اتار دو؟ آج تمہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے میں نے یہ نہیں تھا کہ خرم صاحب نے مجھے نیچے اتارا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ سب کا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں, جب ایک بھائی فیصلہ کرے تو سب کا فیصلہ ہوتا ہے. بہن ایک منٹ ٹھہری گا ذرا. یہ نیچے کالو صاحب کہہ رہے ہیں کال پر لیں, ان کو کال پر لیں جی, ذرا ان کو تو لیں. کالو صاحب آئے میرے. جی السلام علیکم صفیہ باجی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. آپ مصروف تھی کافی, تو کال نہیں لے رہی تھی, میں نے کہا چلیں لکھ دیتا ہوں نیچے. کالو صاحب آپ کل میری والدہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے, ذرا اونچا بولیے گا. کل جو کہہ رہے تھے آپ اپنی والدہ سے زنا کرتے ہیں, یہ آپ کا اپنا فتویٰ ہے. اچھا یہ مرزا صاحب کی بات کر رہے ہو؟ نہیں, یہ سیکر دلہ صاحب کا فتویٰ ہے کہ گستاخ کو پاس بٹھانے والا اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے. تو سیکر دلہ صاحب سے بارہا پوچھا گیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا مخنث ہے, وہ عورتوں سے زنا کرتا ہے اور اپنے ساتھ لواطت کرواتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے مزاج احمدیت کے لوگ. اندازہ کریں, ننگی گالیاں کل اس نے میری والدہ کو دی. اس بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بکواس یہ بندہ پہلے کر چکا ہے, ابھی آ کر دیکھیں اس نے وہی گالیاں ادھر دہرائی ہیں. دیکھیں ہمارا تجربہ ہمیں لوگوں کو کیسے پہچانتے. اتنے بے شرم لوگ ہیں, اور یہ کیا کہیں گے, آپ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس.
आप इधर बैठे जाके, जो हमें दल्ला गए, जो लोगों दो की माओ बाजियां- को, जाहिद भाई पे ठहरे, जाहिद भाई पे दो ठहरे, बाजियां बैठी, उनसे पूछ ले ये साथ बैठने के काबिल हैं? जाहिद भाई पे ठहर जाए। नहीं नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूं, ये चेहरा है, ये तकलीफ ये नहीं है मुखालफों की, तकलीफ ये है कि आप इज्जतदारों में क्यों बैठी है, तकलीफ ये है कि वो आपकी इज्जत क्यों कर रहे हैं, आपके मुखालिफ जो आपके साथ बैठे हैं, तकलीफ ये है उनको। सैफी की तरह आपको गंदी, आपको हरामजादी क्यों नहीं कह रहे, इस बंदे की तरह आपको कुत्ती क्यों नहीं कह रहे, जो इस बंदे ने आपको कुत्ती कहा था, इस कालू ने, माजरत के साथ ये अल्फाज मुझे यूज करने पड़ रहे हैं। इस कदर ये बेशरम लोग हैं। अब कह रहा है अहमद रजा बरेलवी साहब के फतवे के मुताबिक, एक बेशरम आया है वो मुझे शिया कह रहा है, दूसरा मुझे वाबी कह रहा है, कल को ये मुझे कुछ और ना बना दे, माजरत के साथ मेरी कोई आगे से इस तरह की हरकतें नहीं है यार। अब लिमिट देखें इनके लहजों की, इनकी गुफ्तगू की। हाँ, अब आप किसी अहमदी को ऊपर लेंगे, वो पता है क्या कहेगा, ये आपका मिजाजी अहमदियत नहीं है बहन, आपका मिजाजी अहमदियत नहीं है, आप मिजाज के खिलाफ काम कर रही हैं, ये मिजाज है। आप अभी माइक पकड़े, माँ बहन की गालियां निकाले मुसलमानों का, आपका मैं कहता हूं रिकॉर्ड कायम होगा, जमात में आपको वापस रजिस्ट्रेट कर लिया जाएगा बैत के अंदर। ये लोग है, ये हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम पर, तुम्हें मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने डेमो दिया है, अभी सामने डेमो दिया है। कल पूरा दिन मेरी वालदा को इन्होंने गालियां निकाली है, क्या आज किसी ने मेरे मुंह से गालियां सुनी है? मैंने जिक्र तक किया है किसी का, किसी ने जिक्र तक की सुना है मेरे मुंह से कि मुझे किसी ने निकालो? हाँ, दिखाना लाजमी था। और ये जो बंदा आया था एजाज, इस बंदे के साथ बैठे हुए लोग, बाजी आप इनके पास जाके बैठे, ये वो लोग हैं जो कहते हैं नादर लीक करने लगा है पिक्चर्स अपनी बहन की, मिसेज, मैं नाम नहीं लेता, उनकी पिक्चरें लीक कर दूंगा अगर हराम जिंदगी ना छोड़ी तो। इसके साथ जो बैठे हुए लोगों के बारे में लोग कहते हैं, मैं व्हाट्सएप की कॉल पे शामिल हुआ तो आगे से मौलम साहब कर रहे थे गटमिट गिटमिट 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 एक लजना के साथ। यह माहौल है बैठने वाला। आई डेयर यू, आई चैलेंज यू, ये ला हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात लेके आ। कैरेक्टर वाले लोग बैठे हैं इधर। भाई कोई सलमान भाई नीचे गाली ना दे, कोई भी इसको गालियां देने दो, हमें हमारी जात तक हमें जितनी मर्जी ये गालियां देते रहे नीचे, कोई रिस्पांस ना करे, हाँ शातमियत ना करें, गुस्ताखी ना करें, हमें गालियां जितनी मर्जी देते रहे। उनकी औकात देखो, इनकी औकात देखो। शुक्र अदा कर तुझे ब्रॉड के ऊपर लिया है। 5-5 यूरो खाने वालों, तुम लोग हो बेयारे अहमदियत, 5-5 यूरो खाने वालों और फीस काट लेने वाले 5 यूरो की। अभी भी अलीम पीट रहा है तुम लोग के 5 यूरो के इंतजार में बैठा है, 5 यूरो खा गए उसके, और तुम लोग बताओगे ठगियां करने वाले। यार यहां पर बताओगे म्यार क्या होता है? मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अंदाजा करो यार, इनकी जुबानें देखो। उसने आते ही मुझे गाली निकाली है। मैं आपसे पूछता हूं जी, मुझे बताए मैंने क्या पूछा? सीकर भाई, जाहिद भाई, मैंने सीकर भाई, मैंने यही पूछा ना मेरी वालदा को, तुम क्या कह रहा था? मैं पता क्या कहने लगा था, एक तो ये जाहिल है, एक तो ये जाहिल है, दूसरा इनमें अकल नाम की चीज नहीं है। इतने जाहिल हैं कि एक बंदा अगर तुमसे पूछ रहा, ओ भाई तू ऊपर बात करने आया, कम से कम तेरे अंदर थोड़ी सी भी अकल होती ना, रत्ती बराबर भी तेरे अंदर अकल होती, इस बात को इग्नोर करके कम से कम तू ऊपर जो बात करने आया तो बात करके जाता। जाहिल आदमी, बेवकूफ़ आदमी, तूने गालियां निकालनी शुरू कर दी, ये तुम्हारी अकल का मेयार है, खोते दिमाग दे। यार ये अपने घर में बैठा हुआ था, इसकी बच्ची इसकी गोद में है, उसकी आवाज़ पीछे से आ रही है, इसकी बीवी भी पास ही होगी। ये अपने घर का माहौल देखें इनका कि घर में ये कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, अंदाज़ा लगा लें इनकी। ये जमात के नुमाइंदे हैं, निज़ाम जमात जिसका बहुत ढंडोरा पीटते हैं, उसका ये हाल है। ये तरबियत है जमात अहमदिया की अपने बच्चों की। नहीं, ये असल में देखे बात ये है, खुतबा पुराना हो गया ना, खुतबा पुराना हो गया ना, तेरे हफ्ते ना गए। जी वो नीचे फिर मुझे गालियां दे रहा है। दे यार गालियां, तुम लोग क्या कर सकते हो? वो देखे कि मैं अब क्या कह सकता हूं कि आसमान की तरफ देख कर अगर थूका जाए तो थूक मुंह पे गिरता है। यार मेरा लेवल नहीं है तुम लोगों के साथ। देखो, जिस दिन जब तुम किसी शख्स के बारे में लगाकर गालियां देते हो ना, किसी शख्स को पिटते हो, धमकियां देते हो, पुलिस की धमकियां देते हो। जाहिद भाई मुबारक हो जब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਕਰ ਭਾਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਧਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਟੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। नहीं, मैं सिंपल सी बात है कि यार हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर आके देखो उसने मुझे गालियां निकाली, चलो जी शुक्र है कुत्ते निकल गया उनकी गालियों में से। वो कह रहे तादुल बैन काफरीन अपने गिरबान में झांक कर बदबू से गशी पड़ जाती है। चल जज़ाकल्लाह जी ताहिर साहब, आपने गाली नहीं दी, ये बहुत मेहरबानी तो गशी नाल ही थल्ले डिगे ने बराड़ तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर यही सवाल पूछूंगा कि यार मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या आज मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ वैसे कि यार कोई अच्छा निजाम दिखा दो फिर। चलो निजाम का मतलब ये है, आप लोग कहते हो इनके साथ ना बैठो, तो हमें कोई अच्छे लोग ही दिखा दो जिनके साथ वो बैठ जाए। किसके साथ बैठे? जो नबी पाक को गालियां देते हैं, जो अपनी बहनों की फोटोएं लीक करते हैं, किनके साथ बैठे बताओ, बता दो ना। ये इस एजाज की ब्रॉड पे बैठे जहां से शराब पीने वाली बात हुई थी सारी की सारी, इसके साथ बैठे जिसने कहा था माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह टॉयलेट पे मरे थे। किसके साथ बैठे तुम बता दो। चलो जी वहां बैठ जाती जाके, कोई जगह तो अच्छी बता दो। हमारे अलावा उनके पास सिर्फ एक ब्राड बची है ओपन आइज की। हाँ, वो खुद भी उनके ताब के अंदर है, वो खुद उनके प्रेशर के अंदर है। मुझे बताओ ना जी, चलो तुम्हें सारा मसला सिर्फ यहाँ का ही है, तो फिर बताओ उनको निजाम को अच्छा भी तो दो ना, कोई अच्छी ब्रॉड भी तो दो जहाँ बैठे। सिर्फ मसला एक घर बैठ जाए, खुदारा घर बैठ जाए या वो बन जाए जो बाकी है, और आप भी कहे सैफी भाई बाद आप घर बैठ जाए। जी मुझे एक मिनट कर एक बात। नीचे भाई मैसेज कर रहे हैं कि मर्दों के साथ ना बैठे औरतों के साथ बैठे। तो भाई अदनान भाई लगा दो यार, किसी औरतों की ब्रॉड लगा के बाजी को दो कि उस पर बैठे वो अपनी उनकी दादरसी करे। कोई औरतों का पैनल तश्कील दें जो उनकी दादरसी करे, वो दुखी हैं तो उनके दुख का मुदावा कर दे, उनको दिलासा दे दे। मना किया किसी ने कि औरतें ब्राड ना लगाएं जमात अहमदिया की, और इनकी बात ना सुने, इनको साथ ना बिठाएं। नहीं बिठाओगे आप साथ, क्योंकि इनका इखराज हो चुका है। कभी नहीं लोगे आप इनको साथ बिठाओगे, क्योंकि आपको पता है जिसका इखराज हो जाए उससे सोशल बाइकआउट है। तो फिर वो कहाँ क्या करें, कहाँ पर जाके अपनी फरियाद सुनाएं? सुनने को तैयार नहीं आप लोग। अगर वो आके मुसलमानों के पास आके बैठ के सुना रही हैं, या उनकी ब्राड पे हम आए हुए हैं उनकी बात सुन रहे हैं, इस पे भी आपको इतराज़ है? गला घोट के मार दो यार, सोशल बाइकआउट ना किया करो। तकिया रख के मुंह पे बंदे को मार दिया करो ताकि जान छुट जाए उससे, ताकि वो बोले ही ना। ये काम किया करो। औरतों की ब्राड पे चली जाएं, ब्राड लगा के दें उनको, कोई भी नहीं लेगा उनको, उनका इखराज हुआ। उस्मान भाई असल मसला पता क्या है, सियाने कहते हैं ना राह पे जाने ते वाह पे जाने। जिसके ऊपर भीतरी होती है ना, पता होता है उस बंदे को। नीचे ये जो बाहर बैठ के तमाशाई होते हैं ना, ये जो नीचे ये अदनान मतलब टाइप के और ये बाकी ये जितने ढोल की थाप पे भंगड़ा डालने वाले तमाशाई हैं ना, ये सिर्फ लेक्चर दे सकते हैं। इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। जितने लोगों को ऊपर बुला के पूछा है, हाँ भाई ठीक है, इन सब को ये मैं कहता हूँ ये टिकटॉक भी बंद कर देती हैं, सारा कुछ बंद कर देती हैं। इनमें से कोई एक बंदा भी है जो गारंटी दे सके कि मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, मैं आपका निज़ाम में जो है वो जो इखराज है उसका सिर्फ चले वो इखराज का सज़ा ख़त्म करवाना, मुकाता ख़त्म करवाना दूर की बात है। एक बंदा ऐसा है जो ये सिर्फ ये कह सके कि मैं आपको रीज़न ही पता कर देता हूँ जमात में, रीज़न क्या है, किस वजह से आपका इखराज हुआ, सिर्फ ये पता कर। एक बंदा भी है, किसी की जुर्रत ही नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि जाके ये सवाल ही कर ले कि फ़लाँ बंदे का इखराज क्यों हुआ, पूछ नहीं सकते। तो ये मतलब सारे तमाशा देखने वाले, ये ढोल पीटने वाले, पीछे भंगड़ा डालने वाले, ये कब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं इनके लिए, ये सिर्फ ख़वातीन के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये सिर्फ लेक्चर झाड़ सकते हैं आके। एक बंदा मुझे बता दे, ये 2 महीने से एक बंदा मुझे बता दे जिसने कहा हो कि मैं सिर्फ आपको पता करा देता हूँ बाजी आपका इखराज क्यों हुआ है,
सिर्फ वजह पता करा देता हूँ आपको, किसी बंदे ने कराई है? नहीं कराई। ख़वातीन की तो ये फ़ोटो निकलवा लेते हैं निज़ाम से, वो एक खातून को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि तेरियां फ़ोटो साढ़े कोल आ गई ने, और जड़ियाँ तू एम्स कार्ड वास्ते दित्तियां सी साढ़े को पहुँच गई ने, ते असीं ला देनियां ने सोशल मीडिया ते। कौन सी ये किस वो काम कर सकते ये भी यार, ये सर्वा सिस्टर को धमकियां मिली हैं कि एम कार्ड दियां जड़ियां तस्वीरां सी तेरियां उसी कढ़वा लियां ने ते वो ला देनियां ने सोशल मीडिया ते। तो वो धमकियां देने के लिए सारा कुछ कर सकते हैं, रीज़न नहीं निकाल सकते कि भाई इखराज हुआ क्यों है। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब ये जो सारा कुछ ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये नहीं है कि जो सीरियस अहमदी हैं उनको खबर नहीं है। पहले दिन से, आप लोगों ने तो बहुत बाद में जाके कहा होगा ना, पहले दिन से अंदरों अंदरी सारे एक दूसरे को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। और उसके अंदर जो है मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती, और अब जो है जब वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, मुझे बाज करवाना है। उनके साथ बैठूं, कुछ ने ब्रॉड से उतार दी है, कुछ ने जो है वो ऊपर लेना डर से छोड़ दिया है। अच्छा बाजी, आज ये बात भी क्लियर हो जाए, ये जो इल्ज़ाम है ना कि दुश्मनों के साथ बैठने की वजह से आपको जमात के ताब का शिकार हैं, मुझे एक बात बताएं, जिस दिन आपको ब्राड से उतारा गया था खुर्रम राना की तरफ से, उस दिन आपका ऐलान हो चुका था, आपका इखराज हो चुका था? और नहीं, जब आपको इन्होंने खुद निकाला ब्राड से, खुद उतारा, आपके रास्ते खुद बंद किए, उसके बाद आप इधर उधर ब्राड पे जाके बैठना शुरू हुई ना। मेरा ख्याल है उसके अलावा मेरा ख्याल आप हमारी ब्राड पे आती थी, उसके अलावा तो आप किसी और ब्राड पे बहुत कम जाती थी। तो जब इन्होंने खुद रास्ता बंद किया, खुद उतार दिया, आज किस मुंह से एतराज़ कर रहे हैं कि आप उनके पास जाके बैठती हैं, हमारी ब्राड पे नहीं आती, जब इन्होंने खुद उतार दिया और सब ने बात जमात होकर कहा कि जो फैसला खुर्रम राना का हमारा सब का है, ये अल्फाज थे। बाद में मैंने सैफी भाई से कहा भी, उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे एक लजना ने कहा आप आए आए आए, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, आप आए तो सही। उसके बाद जब आप गई थी नीचे, जो आपने टेक्स्ट किए थे, मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं जो आपको जवाब मिला था। आज किस मुंह से कहते हैं कि आप अहमदियों की ब्राड पे बैठे हैं, आप इनके साथ ना बैठें? किस मुंह से कहते हैं? सोशल मीडिया ढकी छुपी बात नहीं है। ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इनको हर एक ने समझाने की कोशिश की है, हर एक ने, हर सीरियस बंदे ने समझाने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिस्टर, ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे उम्मीद है कि आप सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी पा रही होंगी। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये आपने माशाल्लाह एक लगाया जी, पहले जो मैं आपसे अपने करदा और नाकरदा गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ, जिससे हुजूर नाराज़ हूँ, उसको नींद कैसे आएगी। आप माफ़ी के तलबगार हैं? अच्छा सवाल कर रहे हैं? जी ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पहले रीज़न भी पता चल जाए ना, ताकि मैं स्पेसिफिक वो काम भी छोड़ दूँ। नहीं, अगर तो आप माफ़ी की तलबगार हैं तो, और दूसरा मुझे आप भाई समझती हैं, जैसे आपने मुझे मैसेज में भी कहा था, तो मैं एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। जी माजा भाई, हुक्म करें आप। हुक्म नहीं, मैंने अर्ज़ करनी है कि आप ये ब्राड बंद कर दें और मेरे से पर्सनल में रब्ता कर लें। ठीक है माजा। अगर आप माफ़ी की तलबगार हैं तो। नहीं माजा भाई, वो तो देख लेंगे, लेकिन आपने कह दिया है तो ठीक है। चले ठीक है, ओके जी एवरीवन। अब ये मैं समझ जरूर, अल्लाह करे जी आपका काम हो, अल्लाह करे, हम बिल्कुल करें, उनसे बात करें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अहसन जी। बहरहाल आपने अगर मुझे भाई समझा ना, फिर अभी बात बंद कर दे ब्राड, और काइंडली मेरे से रब्ता कर दे। बिल्कुल अच्छी बात है जी, बंद करें ब्रॉड। भाई ने अगर जिम्मेदारी ली है तो होनी चाहिए। जी जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी सिस्टर।
السلام علیکم السلام